this is Sarat Srivastav and you are watching my channel ESL Institute Balrampur. So we have completed 4 videos already, 4 days videos. In our previous classes, you learnt how to behave, how to greet someone. And the second class by the sequence, if you have just watched all the videos, definitely you are going to speak within the 90 days, because language doesn't need any kind of a grammar. This is my guarantee, because the grammar only that kind of a grammar we need which only tells us the sequence how to speak English. There is no need to learn the noun, pronoun, adjectives and all. This is my guarantee. So now today I am going to start from this video. I am going to start the grammar and the very important classes. The 5th video today, the 5th day's class I am going to teach you today. So one thing is very important, that if you have not watched my 4 last videos from this series, basic communication English, so definitely you are not going to understand anything, because all the lectures are very important and they are all interconnected with each other. So please, if you have not watched those 4 videos, please go and find the link in the description below that I have put already, and please just click on that link and please watch all that thing. And before starting this video lecture 5th day class, please subscribe my channel and share this video to others, and please click the bell icon, so that also the further video updates you will get in the your mailbox already and directly. So thank you, and now please watch for the best result, the full video. If you are not watching full video, definitely the result may vary and may be possible. If you are just missing something, definitely the confusion will be remain, and if it will not be sorted out, so you will think that the video is not worthful. So definitely, if you are just trying to get the best result after watching this video, so please watch the full video. And if you have any problem, you can comment in the comment section and you can ask anything. I will be there for you, not for 24 hours, but definitely I would try to reply everybody's questions and queries. So let's start the video. तो ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। इस 10 सेकंड में आप अपने पास गेस करिए और कोशिश करिए लिखने की ग्रामर की स्पेलिंग होती क्या है। एक्चुअली ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या है। वैसे तो हिंदी में इसका मतलब होता है व्याकरण। चलिए, मुझे लगता है अगर आपने गेस किया हुआ है तो मैं सही स्पेलिंग लिख कर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को उस चीज़ों पे पता चले कि प्रोनाउंसिएशन के साथ ही हमारा जो स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये रहा ग्रामर। अगर आपने ER लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग ये सही स्पेलिंग है। तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, किसी भी भाषा को बोलने के 2 तरीके होते हैं और इंग्लिश के भी हैं। आप मुझे कोई भी लाइन हिंदी में बोल लीजिए, कोई भी, जैसे खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, तो आप देखेंगे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ मिलेगा, काम करने की बातें मिलेंगी। अगर मैं आपसे 2-4 सेंटेंस में रिपीट करूँगा और आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके कि इसमें वो कौन सा काम हो रहा है, काम को पहचानना है केवल। अगर आप पहले तो स्टेप ये है कि आप इसको अगर पहचानने लगे तो समझिए कि आपका आधा से ज़्यादा काम आपने ये काम कर लिया। और अगर आप काम को नहीं पहचान पा रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए पहले तो हमें इस पे महारत हासिल करनी होगी। मीन्स फर्स्टली वी हैव टू टेक द गुड कमांड ओवर दिस, दैट वी कैन रिकॉग्नाइज द वर्क इन एवरी सेंटेंस। डोंट वरी, आई विल स्पीक द सेंटेंस इन हिंदी में सेंटेंस बोलूँगा, आपको गेस करना है केवल। जैसे अगर मैं कहूँ मैं जा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, बस आपको ध्यान रखना है जाने का। मैं खा रहा हूँ तो कौन सा काम हो रहा है, खाने का। मैं नहा रहा हूँ तो कौन सा काम हो रहा है,
नहाने का। मैं दौड़ रहा हूँ तो कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का। अब आप देखेंगे अगर मैं कहूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें कौन सा काम हो रहा है? देखिए मैं आपको 10 सेकंड का पॉज देता हूँ। जी देखिए, पढ़ाने का काम अगर आप गेस कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि अध्यापक हूँ मैंने कहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं कहा है मैंने। पढ़ा रहा हूँ अगर मैं कहता तो वहाँ होता पढ़ाने का काम। तो ये अध्यापक हूँ यानी इस सेंटेंस में आपको कोई काम नहीं मिलेगा, यानी ये काम नहीं है, ठीक है ना। तो हमें दो चीज़ें मिली, एक तो वो सेंटेंस जिसमें काम है, और एक वो जिसमें काम नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड आपको इसलिए मैं बताऊंगा ताकि फ़र्क आप समझ सकें कि आप जो मेथड पढ़ रहे थे या हमारे कॉलेज या स्कूल में जो मेथड पढ़ाया जाता है ग्रामर को समझाने का, वो क्यों डिफ़िकल्ट है, और जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो क्यों आसान है। इसलिए मैं उसी के हिसाब से पहले बताऊँगा और उसी के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने मेथड से, ताकि आप डिफरेंस समझ सकें और कंपैरिजन कर सकें कि आसान कौन सा है, और आसान वाला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला तो हम सीखेंगे कि पहले तो हमारे पास सेंटेंस के दो तरीके हैं। पहला एक सेंटेंस इस प्रकार के होगा, ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे हमें जिसमें काम ही काम होगा, और दूसरे इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे जिसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक है। हम इसको ट्रेडिशनल भाषा में काम को बोलते हैं क्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब, और जो काम नहीं है उसको बोलते हैं नॉन वर्ब यानी अक्रिया या अकर्म। चलिए एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश हो गया। अब इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमने क्या सीखा? पहला जो ट्रेडिशनल मेथड है वो वर्ब, इसको हम बोलते हैं क्रिया, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ, और दूसरा है नॉन वर्ब। नॉन वर्ब का मतलब होता है अक्रिया या अकर्म। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ अक्रिया या अकर्म, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं इंग्लिश में ही। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे एक जो चाचा हैं, वो आज से उन्होंने 10 से 15 साल से 18 साल पहले उनके पास एक किताब हुआ करती थी, इसका नाम था न्यू लाइट जनरल इंग्लिश। हम बहुत लोगों के पास आज भी है, और वो पब्लिकेशन बहुत बेहतरीन किताबें छापता है। बहुत बेहतरीन मेथड था उसका ग्रामर पढ़ने का और पढ़ाने का। तो वो किताबें थी, उन्होंने हाई स्कूल उससे पास किया। वो किताब मेरे बड़े भाई के पास आई, उन्होंने अपना हाई स्कूल वही पढ़कर पास किया। वो किताब धीरे धीरे मेरे पास आई, मैंने भी अपना हाई स्कूल पास कर लिया उसी किताब से। ध्यान देंगे कुछ चेंज नहीं हुआ। उसके बाद वही किताब मेरे जो है अभी मेरा एक बड़ा भांजा है उसने पास किया हाई स्कूल, वो भी पास हो गया। उसी किताब से छोटा भांजा जाने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो वो भी उसी को पढ़ के पास करेगा। तो उसमें क्या था, एक चीज़ गौर करने वाली थी कि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई उसमें, मतलब इवन अ सिंगल वर्ड हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। तो क्या है, वही चीज़ें आ रही हैं। फिर भी अगर हम बात करें 20 साल पहले की, अगर हम बात करें 20 साल पहले की, तो वही सारी चीज़ें 20 साल से हम सीखते आ रहे हैं, और स्टिल वी हैव बीन लर्निंग द वेरी common thing, but still we are unable to speak English when it comes to our language। जब हमारी भाषा पर आता है तो क्या होता है दिक्कत, कि हमें बोलना नहीं आता। आपने बहुत सारे ऐसे अपने दोस्तों को देखा होगा कि वो बहुत अच्छी जो है नॉलेज रखते हैं इंग्लिश में, ध्यान देंगे शब्दों पे नॉलेज रखते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू देयर लैंग्वेज दे आर रियली अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ, मुझे देखकर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार ये सब कुछ है इनके पास, बट एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, एंड बिकॉज ऑफ द वेरी a very minor thing, they are unable to get the good jobs and good salary and good post also, so they are unable to progress in their lives. So definitely I would really want them to speak English easily, fluently। तो अभी हम देखेंगे ये चीज़ें बहुत 25 सालों से 20 सालों से आ रही हैं। तो फिर हमने करा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो हमारी टीम ने, या हम कहें हमारे गुरु ने, हमारे महागुरुओं ने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया इसमें। अब ये चेंज क्यों हो, इस वर्ब का मतलब क्रिया और अक्रिया। पहले तो मैं इसको समझा दूं, क्रिया क्या है। क्रिया मतलब काम,
कार्य क्या है? उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना गाना, दौड़ना भागना, है ना, सोना या चिल्लाना, रोना, हंसना, ये सारे जितने भी कार्य हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्ब या क्रिया। और जो काम नहीं है उसको हम बोलते हैं क्रिया। इसको और मैं डिटेल में समझाता हूँ इसके बाद। अच्छा, उन्होंने जो हमारे गुरुओं ने या हमारे टीम ने इसको चेंजेस करा वो क्या था? वर्ब को वो उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया एक्शन। अच्छा, एक्शन क्यों कहा? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि केवल एक्शन ही शब्द क्यों लिया गया और बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको क्यों नहीं यूज़ किया गया, तो मैं बता रहा हूँ कि आपने आई थिंक मूवीज़ आप सभी देखते होंगे, और मूवीज़ के लास्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जिसके लास्ट में ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने शूटिंग कैसे करी है, उस मूवी को शूट कैसे करा है, और उस मूवी को शूट करने के दौरान उन्होंने कौन कौन से जो है एंजॉयमेंट करे हैं, कैसे उस चीज़ को बनाया है, कैसे टेक कई सारे शॉट्स लिए हैं। तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि एक डायरेक्टर नाम का वर्ड लिखा होता है कुर्सी के पीछे, और उस पर वो व्यक्ति बैठता है जो लोगों को डायरेक्ट करता है, यानी कि एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को वो डायरेक्ट करता है कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे सपोज भाई जैसे जिसको खुदाई का काम मिला है वो फावड़ा लेकर खड़ा है कि वो खोदेगा। हीरो और हीरोइन डांस के लिए रेडी हैं, सिंगर गाना गाने के लिए अपने पोज पर खड़ा हुआ है, विलन फाइट के लिए अपने पोज पर खड़े हुए हैं गन लेकर। बस डायरेक्टर क्या करता है, वो कुछ चीज़ें बोलता है कि लाइट्स, कैमरा, साउंड एंड एक्शन। तो हमने भी जब चेक करा कि भाई हमारी टीम ने चेक करा कि एक्शन ही क्यों बोला इन्होंने, एक्शन के साथ साथ वो वर्ब भी बोल सकते थे, क्रिया की भाई लाइट्स कैमरा साउंड एंड वर्ब, बट एक्चुअली दे हैव नॉट स्पोकन वर्ब, दे हैव ओनली। तो एक्चुअली जब हमने चेक करा डिक्शनरी में तो वर्ब का मतलब भी क्रिया और एक्शन का मतलब भी किसी कार्य को करना, तो इसीलिए वहीं से वर्ड लिया गया एक्शन। अब हमने क्या करा, वर्ब को एक्शन कहना शुरू कर दिया, और कुछ चेंजेस, इस छोटे से चेंज करने से जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत तेज समझ में आने लगा, और वो मैक्सिमम चीज़ें बहुत आसानी से समझने लगी। तो अभी हम सीखें, यानी कि जब भी अभी मैं बात करूँगा वर्ब मीन्स एक्शन की अपने क्लासेस में, तो आपको समझना है कि ये वही एक्शन है, ये वही वर्ब है जिसका हमने केवल नाम चेंज करके एक्शन कर दिया है। ठीक है, अब जैसे वर्ब और नॉन वर्ब वैसे एक्शन एंड नो एक्शन। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि काम, क्रिया यानी कि दिन भर के जितने भी काम हैं वही एक्शन है, और जो काम नहीं है वो नो एक्शन है। एक बार हम और समझते हैं एक्शन को। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है, एक्शन के फॉर्म्स होते हैं। आप देखेंगे इंग्लिश के जितने भी एक्शंस हैं उसके फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे अगर हिंदी में हम जाने की इंग्लिश को हम अगर जानने का प्रयास करें तो जाना होता है गो, और गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। देखिए तीनों में बराबर बदलाव हो रहा है, एक ही एक्शन ने लिया है, कार्य है जाना, एक कार्य है जाने का, और उसके सेकंड फॉर्म को तुरंत देखेंगे चेंज हो गया, और थर्ड फॉर्म भी चेंज हो गया, यानी कोई ना कोई बदलाव होगा तीनों फॉर्म्स में। इसमें अगर हम आईएनजी भी लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोइंग। ठीक है, पर अगर जस्ट ऑन द अदर हैंड इफ वी सी नो एक्शन, सो नो एक्शन मीन्स no tension that means there is no action, you don't have to think about the first, second or third form. No action doesn't have any kind of action and all. तो अब कैसे हम समझेंगे इसको और आसान में, जैसे किसी का नाम, that is called name। जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम राजेश है, तो उसमें हम अगर सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे तो राजेश नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म में राजेशन नहीं हो सकता, या अगर उसमें हम आईएनजी लगाए हैं राजेश सिंह तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा, बड़ा भद्दा सा लगेगा। आप अपने नाम के आगे आईएनजी लगा कर देख सकते हैं। तो यानी कि वो नो एक्शन है, किसी का भी नाम अगर आ रहा है तो वो नो एक्शन, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही किसी का ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय। बहुत सारे व्यवसाय हैं, देखिए जैसे होता है टीचर, टीचर एक अध्यापक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि मैं अध्यापक हूँ, वो एक अध्यापक है, वो कार्य नहीं है, वो नो एक्शन है। अध्यापक एक व्यवसाय है, पेशा है। तो अगर हम टीचर बोलते हैं, टीचर में आईएनजी लगेंगे तो टीचरिंग हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। टीचिंग होता है, टीचरिंग नहीं होता, यानी कोई भी ऑक्यूपेशन में बदलाव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इसके बाद आता है ऑक्यूपेशन के बाद नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन। किसी भी
व्यक्ति का कंडीशन यानी परिस्थिति। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं इंसान की, जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, अब दुखी को क्या बोलते हैं? सैड। सैड में हम कभी आईएनजी नहीं लगा सकते, ना ही सेकंड फॉर्म में ना ही थर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो यानी कि वो अगर किसी भी प्रकार का, जैसे खुश है कोई, हैप्पी, तो हैप्पीइंग कभी नहीं होगा, हैप्पीड कभी नहीं होगा। ऐसे जितने भी कंडीशंस हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसे ही इसके बाद एक व्यक्ति की क्वालिटी। क्वालिटी मतलब उसके गुण। गुण बहुत सारे होते हैं, दोष भी होते हैं। गुण या दोष जो भी हैं उसकी क्वालिटी है, वर्च्यूज़ हैं और वाइसेस हैं। तो ये भी एक नो एक्शन है। जैसे किसी की क्वालिटी है वो मजाक किया, मजाकिया को बोलते हैं इंग्लिश में फनी। तो फनी में हम आईएनजी अगर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। फनीइंग कभी नहीं होगा, फनीड कभी नहीं होगा, फनीएस्ट। ये मीन्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे आप नो एक्शन में बदलाव नहीं कर सकते। जैसे इसमें 4 चीज़ें मुख्य हैं: नेम, किसी का नाम, उसका किसी का पेशा, ऑक्यूपेशन, कंडीशन या क्वालिटी। तो इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब मैंने कहा इसमें कोई हम बदलाव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि एक्शन एंड नो एक्शन हमें समझ में आ गया। मैं फिर से बता दूं, एक्शन और नो एक्शन में सबसे बड़ा फ़र्क अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एक्शन के फॉर्म्स हैं और नो एक्शन के कोई फॉर्म्स नहीं हैं। अब एक चीज़ हमें फिर से ध्यान रखना होगा कि हम अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कौन सी चीज़ सबसे पहले लर्न करना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फर्स्ट, एक्शन और नो एक्शन? अगर आपका जवाब नो एक्शन है तो नो एक्शन बहुत आसान है। मैंने बताया नो एक्शन 4 चीज़ें मुख्य हैं उसमें। सबसे पहले किसी का नाम, अगर आपको मान लीजिए नाम बताना है किसी का, तो बहुत आसानी से, जैसे मुझे अपना नाम बताना है तो मैं क्या बताऊंगा? माई नेम इज़ XYZ। ठीक है। अगर ऑक्यूपेशन बताना है तो मैंने कहा मैं एक छात्र हूँ, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट। आसान है। ऑक्यूपेशन भी हो गया हमारा। ये देखिए, ये मेरा नाम हो गया, ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया। अगर मैं कंडीशन बताऊं तो मैं कहूँगा मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ये देखिए, कंडीशन भी हो गया। अब क्वालिटी बताऊं, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम एन ऑनेस्ट। बिल्कुल। आप देखेंगे ये हमारी क्वालिटी भी होगी। यानी कि हम अगर नो एक्शन की बात करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत इजी, हम ये कभी भी बोल सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास बचता है एक्शन। क्यों एक्शन बचता है? क्योंकि इसमें पहला तो सबसे बड़ा दिक्कत इसमें आता है फॉर्म्स। कब हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कब हमें सेकंड फॉर्म लगाना है, कब हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, कब हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, कब हमें यस या यस वाला फॉर्म लगाना है। ठीक है। कौन से एक्शन का कौन सा फॉर्म कहाँ लगाना है, हम टाइम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, जिसको हम ग्रामर की भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले सीखना है। तो यानी कि हम क्या सबसे पहले सीखेंगे? एक्शन। तो चलिए एक्शन के लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना वाइट बोर्ड पहले। अब एक्शन के किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है। 3 थिंग्स वी शुड हैव इन द सेंटेंस ऑफ एक्शन। अब वो क्या चीज़ें हैं? जैसे अगर मैंने कहा था ना, कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोल लीजिए, मैं जा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ। मैं एक हिंदी का सेंटेंस लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब इसमें देखिए 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो वो एक इंसान जो उस काम को कर रहा होगा, दूसरा वो काम जाने का, और तीसरा उस समय, जिससे हमें ये पता चले कि किस समय में काम किया जा रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो ये 3 चीज़ें अगर नहीं, इसमें से कोई एक भी नहीं है, तो वो सेंटेंस अर्थहीन, निरर्थक होगा, मीन्स मीनिंगलेस हो जाएगा। यानी कि वो एक्शन का सेंटेंस होगा ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाएंगे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू make it so easy that you can understand easily and you can try to speak it more and more. थोड़ा सा बारीकी समझना है, थोड़ा सा समय लगता है, बस एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है। तो समझेंगे 3 चीज़ों का। अब हम ग्रामर के हिसाब से पहले सीखेंगे। मैंने कहा था मैं दोनों मेथड बताऊंगा ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ग्रामर का मेथड। अब ग्रामर का मेथड क्या था? इसको हम बोलते थे, जो काम करने वाला व्यक्ति होता था उसको हम क्या बोलते थे? सब्जेक्ट। ठीक है। और जिससे हमें समय पता चलता था उसको हम बोलते थे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और जो काम होता था उसको हम क्या बोलते थे? वर्ब। इसके बाद जो बचता था उसको क्या बोलते थे?
ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि पुराने मेथड में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि सब्जेक्ट क्या है बच्चा समझ नहीं पाता था, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी है, फिर वर्ब भी है, फिर ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता था उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट्स को। तो अब इसको अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं हटा दूँ, इन सब चीज़ों का नाम मैं दूसरा कर दूँ और आसान कर दूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ना बोलकर हम बोलेंगे डूअर। अब डूअर क्यों है? डू का मतलब कुछ भी कार्य करना, और अगर उसमें आपने ER लगा दिया तो क्या बन गया? वो डूअर यानी कार्य करने वाला। तो ये हो गया डूअर। यानी कि डूअर अब मैं हो सकता है, तुम हो सकते हो, यानी कि आई भी, यू, दे, कोई भी हो सकता है डूअर। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वो जा रहा है, वे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक इंसान होगा ज़रूर, तो इसलिए उसको हम डूअर बोलेंगे। अब डूअर के बाद हमारे पास इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मत सेंस होता है समय बताना। समय को हम बोलते हैं टाइम और शब्द को बोलते हैं वर्ड। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना लिख कर इसको बोलेंगे टाइम वर्ड। और इसके बाद हमारे पास जो बचता है कार्य। कार्य पहले समझ चुके हैं, कार्य को हम बोलते हैं एक्शन। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आया जो आपके सामने है। ये आप देखेंगे डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। अच्छा, अब ये अगर हम बात करें सेंटेंस के प्रकार हम देखें तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है ना? यानी कि आप कह रहे हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले एक फार्मूला मिला सेंटेंस बनाने का। और कौन सा सेंटेंस बनाने का? पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का एक फार्मूला मिला, जो इसमें सबसे पहले आएगा डूअर, फिर टाइम वर्ड, फिर एक्शन। एक्शन की कोई पॉजिटिव सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। आप मैं, तुम जा रहे हो, वो जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, वो नहा रहा है, तुम नहा रहे हो, मैं नहा रहा हूँ, कुछ भी आप बोल लीजिए, सीक्वेंस यही है। और अगर आप इसको आखिर तक फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी 99.99% आपका सेंटेंस गलत कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला हमें फॉर्मूला मिला पॉजिटिव सेंटेंस का। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला मिल गया पहला पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। अब हमेशा तो हम पॉजिटिव नहीं बोलते ना, हम बहुत बार ऐसा होता है नेगेटिव भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ को मैं अगर मैं नेगेटिव बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं नहीं जा रहा हूँ। यानी कि एक सब कुछ वही है, बस नहीं शब्द बढ़ गया है। जैसे मैं हिंदी में लिख दूँ ताकि आप बेसिक लेवल वाले उनको बड़ी दिक्कत होती है तो ना हो, तो वहाँ लिखेंगे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसको एक चीज़ बढ़ गई बस नहीं, यानी कि हम सेम इसको लिखेंगे, बस नेगेटिव सेंटेंस में नॉट बढ़ा देंगे, यानी डूअर तो रहेगा ही रहेगा। टाइम वर्ड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, TW के नाम से जानेंगे टाइम वर्ड। और इसके बाद हम क्या जोड़ देंगे? नॉट। और क्या बचा हमारे पास? एक्शन। तो आप देखेंगे हमें एक और फार्मूला मिल गया जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव। यानी कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। अब ये दो बातें तभी होंगी जब आपसे कोई पूछेगा। भाई जब मैं आपसे पूछूंगा तभी या तो आप बोलेंगे हाँ मैं जा रहा हूँ, या तो आप बोलेंगे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये दो बातें होंगी। यानी कि अब बात आती है प्रश्न करने की। तो प्रश्न करने के लिए हम क्या करते हैं? इस टाइम वर्ड को हम डूअर के स्थान पर रख देते हैं और डूअर को हम टाइम वर्ड के स्थान पर रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे टाइम वर्ड अगर हमें पहले रखना है, इसके बाद टाइम वर्ड के स्थान पे हमें डूअर रखना है, एंड नाउ ओनली वी हैव एक्शन। यानी कि हम देखेंगे क्वेश्चन करने का फॉर्मूला भी हमें मिल गया। तो इस प्रकार हमारे पास 3 फॉर्मूले मिले। पहला तो पॉजिटिव आंसर का, दूसरा नेगेटिव आंसर का, और तीसरा क्वेश्चन करने का। तो इसके बाद अभी सॉल्व नहीं हुआ है ये, कुछ चीज़ें अभी और भी बतानी है। क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तब आपको अब समझना है। मैं एक चार्ट बनाऊंगा आगे, उस चार्ट में आपको बताऊंगा कि किस समय में कौन सा टाइम वर्ड लगेगा और एक्शन का कौन सा फॉर्म होगा। तो इस चार्ट को मैं पहले प्रिपेयर करके आपके सामने बनाता हूँ, और इसके लिए मैं पहले वाइट बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। अब देखिए चार्ट समझने के लिए मैंने थोड़ा पेपर ले लिया, क्योंकि उस पर जगह वाइट बोर्ड पे कम मिल रही थी। तो मैं आपको पेपर के माध्यम से भी समझा दूं ताकि आपको चार्ट समझ में आ जाए एक बार में ही, सिंगल वीडियो में। अलग मुझे इसके लिए अलग वीडियो या पार्ट ना बनाना पड़े, ताकि आपको सीक्वेंस वाइज मिलता रहे। तो चार्ट के लिए सबसे पहले तो मैंने एक हेडिंग डाल दिया चार्ट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो
ये एक मैंने इसका एक हेडिंग ले लिया, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड, लाइक दिस। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है पर कोशिश है। देखिए अब हेडिंग डालेंगे हम। सबसे पहले तो हमें समय कौन सा है, हम उस समय की कैसे बात करेंगे। पहले तो हम टाइम हेडिंग डालेंगे, टाइम के बाद उस समय में कौन सा टाइम वर्ड यूज़ होता है, और इसके बाद हमारे पास उस टाइम वर्ड के साथ हम एक्शन का कौन सा फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक्शन फॉर्म हमने लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो समय हमारे पास होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम बहुत कॉमन हम सभी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बताऊंगा और हिंदी में लिख के समझाऊंगा ताकि बेसिक लेवल वालों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी में लिखूंगी कार्य का जारी होना। अब कार्य का जारी होने से मतलब है काम का चलना, जिसको हम ग्रामर की भाषा में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पर मैं ग्रामर में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो कार्य का जारी होना यानी कार्य चलना। अब कार्य जब चल रहा होता है यानी कंटिन्यूअस में, तो हम बात करते हैं कौन से टाइम वर्ड की, इज, एम, आर। यही 3 मेन जो हेल्पिंग वर्ब या हम टाइम वर्ड कहें यही आते हैं। अब इसके साथ एक्शन में केवल कोई फॉर्म नहीं लगता, जो भी एक्शन होगा यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आईएनजी हम जोड़ देते हैं, बस हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। बस उसको उसमें आगे हम जोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर हम इसका एक उदाहरण ले लें, इस सेंटेंस का एक उदाहरण अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। मैं की इंग्लिश, भाई सबसे पहले तो यहाँ पे हम पॉजिटिव आंसर दे रहा हूँ, तो पॉजिटिव आंसर का फॉर्मूला हम फिर से लिख लेंगे। पहले डूअर था प्लस टाइम वर्ड और प्लस एक्शन। तो इसी को देखते हुए हम सेंटेंस अपना बनाएंगे, मैं जा रहा हूँ। तो डूअर कौन है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। टाइम वर्ड क्या है, काम चलने की बात हो रही है, जा रहा हूँ, हमें यही ध्यान रखना है, काम चलने की बात हो रही है तो आई। और जो है आई के साथ हम क्या लगाएंगे, जो कि सर्टेन है, एम ही लगेगा, तो आई एम। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। और इसमें देखेंगे एक्शन के फॉर्म में, एक्शन फर्स्ट फॉर्म यानी गो फर्स्ट फॉर्म में होगा, उसके साथ आएंगे तो बन गया गोइंग। यानी पूरा सेंटेंस बहुत आसानी से बन गया, आई एम गोइंग। अब इसी को अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊँ निगेटिव, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो निगेटिव का हम आंसर अगर हम देखेंगे डूअर, उसमें क्या था, नॉट बढ़ गया था, यानी कि डूअर है प्लस टाइम वर्ड है प्लस नॉट है और प्लस एक्शन है। तो अब देखेंगे इसी के हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे डूअर कौन है, मैं, और इसके साथ आई के साथ एम लगेगा, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, और जाने की इंग्लिश गो है तो इसमें लगा दीजिए गोइंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आई एम नॉट गोइंग। देखिए अभी हम इसी 2 पे काम करेंगे क्योंकि अभी चार्ट समझना है। चार्ट के बाद मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक एक्शंस में मैं प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो हमें अभी ये चार्ट समझना है। तो मैं एक समय क्लियर हो गया, हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आता है हमारा। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कार्य का अभी अभी खत्म होना, कार्य का अभी अभी खत्म होना। यानी कि अब इसको समझना होगा, खत्म होना अभी अभी कोई काम, यानी कि जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, एक समय आया कि मैं बोलूँगा मैं चाय पी चुका, यानी कि काम अभी तुरंत ख़त्म हुआ है। अब ये पास्ट नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, ये है प्रेजेंट ही, लेकिन ये तुरंत अभी ख़त्म हो चुका है। तो इस अवस्था में हम टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं हैज़ या हैव, और इसके साथ एक्शन का हम थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा PDF फाइल की, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी नहीं, जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसको डाल दूंगा, और आप लोग वहाँ से 1000 एक्शंस हैं, उसमें 1000 एक्शंस वर्ड्स हैं, और उसके फॉर्म्स भी बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, इवन ING फॉर्म भी मैंने बना के उसमें लिख दिए हैं, और उसमें यस या ES वाले भी फॉर्म मैंने बना के डाल दिए हैं, ताकि बेसिक लेवल वालों को कोई भी प्रॉब्लम हो ही ना, वो अच्छे से समझ लें उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मैं डिटेल में चलूँगा बाद में, अभी तो मैं आपको बस ये समझा दूँ कि कार्य का अभी भी ख़त्म होने की बात जब होगी तो उसमें हैज़ हैव लगाएंगे।
हैज़ या हैव लगाएंगे, दोनों साथ नहीं, ध्यान रखेंगे। और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे अगर गो आ रहा है तो थर्ड फॉर्म में गॉन हो जाएगा। एक सेंटेंस में बना दो, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं यही बात करूँ, मैं जा चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश टूअर क्या है, आई। ठीक है, अब आई के साथ हैज़ या हैव लगेगा। ये कहाँ कैसे क्या लगेगा इसको मैं बताऊँगा। आई के साथ हैव लगेगा या हैज़, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आई हैव। गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव गॉन। ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। अब इसको डिटेल में मैं आगे जो चार्ट क्लियर कराऊंगा तो एक एक पॉइंट्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम चार्ट पहले क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तीसरा पॉइंट है हमारा कार्य का भी खत्म होना हो गया, कार्य का जारी होना, कार्य का भी खत्म होना। अब हम बात करेंगे डेली रूटीन। अब डेली रूटीन क्या है, यानी दिनचर्या। हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम बात करते हैं, या तो हमारी वो आदत बन चुकी है, कहीं ना कहीं हमारी हैबिट में शामिल हो चुकी है, या हमारी लाइफ में शामिल हो चुकी है। जैसे मैं खाता हूँ, नहाता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, यानी कि जो काम हम रोज़ करते हैं, उन बातों को जब हमें करना होगा तब हम डेली रूटीन वाला पॉइंट्स देखेंगे। और इसमें हम जो टाइम वर्ड लगाते हैं वो डू है या डज है, और इसके साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है और कुछ नहीं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि डू या डज हिडन टाइम वर्ड है, आंसर में छिप जाते हैं। क्वेश्चन में और नेगेटिव आंसर में ही रहेंगे, पर पॉजिटिव आंसर में ही हाइड हो जाएंगे। वो आगे मैं समझाऊंगा। पर एक एक्शन में लेता हूँ, हाइड होता है। मैं पॉजिटिव आंसर में मैंने कहा हाइड हो जाता है, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नहाता हूँ या मैं रोज़ नहाता हूँ। अब ना काम चल रहा है ना काम ख़त्म होने की बात हो रही है, यानी कि काम ऐसी बात हो रही है जो हमारे डेली लाइफ में शामिल है, वो आदत है हमारी। तो अगर मैं कहूँ मैं रोज़ नहाता हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है डूअर है कौन, मैं, यानी आई। अब डू डज पर पॉजिटिव में छिप जाता है, तो ये छिप गया। हमारे पास क्या बचा, एक्शन। तो एक्शन क्या है, नहाना। नहाने की इंग्लिश होती है टेक, बाथ। और रोज़ की इंग्लिश यानी डेली, प्रतिदिन। ये आई टेक बाथ डेली। अब इसको मैं डिटेल में और समझाऊंगा जब चार्ट क्लियर कराऊंगा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा पास्ट। अब पास्ट क्या है, पास्ट मतलब जो बीत गया, 10 मिनट पहले भी जो हमने काम किया वो हमारा पास्ट हो गया। अब पास्ट का टाइम वर्ड होता है डिड। अब डिड में क्वेश्चन करते समय एक्शन का हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। और अगर हम पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं तो हम एक्शन का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये थोड़ा सा बारीकी समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन अगर हम पास्ट में डिड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर इसका हम पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन और पॉजिटिव आंसर ही मैं आपको देख के दिखाऊंगा, ताकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। अभी मैं पॉजिटिव आंसर सारे सेंटेंसेस के एक मतलब सारे पॉइंट्स के एक एक सेंटेंस में पॉजिटिव आंसर ही बना रहा हूँ, तो इसका भी अब आंसर पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म है। यानी कि अगर मैं कहूँ मैंने कल नहाया था, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब ये भी हिडन टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड एक्शन, यानी कि जब पॉजिटिव आंसर देंगे तो ये छिप जाएगा। तो डिड अगर गायब होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्शन। और एक्शन का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। तो आई टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, और बात को बात ही बोलेंगे, आई टुक बात। अब डेली नहीं होगा वो, यस्टरडे, यानी कल नहाया था, यस्टरडे। इसमें जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूँ यस्टरडे। ठीक है। अब हमारे पास पांचवा, इसको मैं डिटेल में फिर से समझाऊंगा जब डिटेल इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। अब चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा पॉइंट हमारा है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का जो टाइम वर्ड होता है वो विल है। फ्यूचर समझाने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। फ्यूचर यानी भविष्य, कल जाऊंगा, कल खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर के होते हैं। अब विल और शैल दोनों होता है, पर अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो इसमें हम सारी चीज़ें विल से ही यूज़ करते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको शैल की तरफ भागने की। हाँ, ऐसा नहीं यूज़ बंद नहीं हुआ है, पर कम हो गया है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम पीपल दे नेवर, आई एम नॉट सेइंग नेवर, बट दे डोंट यूज़ शैल। दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क यूजिंग विल। वो विल से ही सारे काम चला रहे हैं। ठीक है, तो शैल के लिए आप इतना परेशान मत होइए, विल से ही हम सारे काम चलाएंगे। और विल मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल भी क्लियर है कि आप विल से सारी चीज़ें बोल सकते हैं। यू डोंट हैव टू हेजिटेट। ठीक है, आपको हिचकिचाना नहीं है कि अरे हम शैल पता नहीं कहाँ यूज़ करें, तो वो उसको भी मैं बताऊँगा। पर अभी ये विल वर्केबल है, हम विल पे ही बात करेंगे, मैं आसान तरीके से बोलना है।
तो अब इसका एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, इसमें कोई आपको सोचना नहीं है। अगर मैं इसी की बात करूं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो डूअर कौन है? मैं, यानी कि आई। और टाइम वर्ड क्या है? इसमें छिपने छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है, तो विल लग जाएगा। एक्शन जो भी होगा, जाना, आई विल, और जाने के लिए गो, फर्स्ट फॉर्म है तो गो। कहाँ? टू स्कूल। बन गया सेंटेंस हमारा पूरा, आई विल गो टू स्कूल। कल की इंग्लिश होती है टुमारो, यानी आने वाला कल। ये बस। तो हमने इस चार्ट को सीख लिया है। देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी इसको डिटेल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे। और पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द लिंक and click the bell icons, so the next video updates you will get directly in your mailbox. And please share with your friends also who they really need it. देखिए आप जिनको सच में ज़रूरत है उनको आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी उस चीज़ को मिल सके, वो चीज़ें मिल सकें जिसके लिए वो परेशान है। पूरे इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हैं। देखिए इंग्लिश सीखने और सिखाने के लिए लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि जिनको आता ही नहीं पहले से इंग्लिश, वो इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे। तो मेरी इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स को इंग्लिश में नहीं, ना कि हिंदी, इंग्लिश में बताऊंगा, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा एक चीज़ को, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें समझ में आए। कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो प्लीज़ हमारे पास नीचे कमेंट में सेक्शन, जो कमेंट सेक्शन बना उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो वीडियोस हमारे पहले के उसके लिंक्स हैं उसको ज़रूर देखिए, बिना उसको देखिए आप आगे प्रॉब्लम करेगा, वो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो अगर जो इस वीडियो को नहीं देखेगा वो नेक्स्ट वीडियो को समझ में, मतलब उसको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। नहीं क्या मतलब, वो समझ ही नहीं पाएगा कि चार्ट क्या है और पॉजिटिव आंसर का फार्मूला क्या है, नेगेटिव आंसर का। तो ज़रूरी है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो आपको एक दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखना है सीक्वेंस वाइज, नहीं तो आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, मैं पहले बता दूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।